Hello, children. How are you? Fine. I hope you all are fine. Once again, I am here with you with a new lesson. The lesson is a gift of chappals. A gift of chappals from your textbook Honeycomb. You all know the name of your textbook, that is Honeycomb. A very beautiful story. So I hope you all have your books and please open your book on page number 18 and let us go through the story with me with the help of this video. Okay, so the main character of this story is Mridu. Not only this, Mridu is the main character, you will find several others. She is a young girl. Who is Mridu? A young girl. She was growing up in Madras, now it is known as Chennai, with a Tapi and grandmother. Those Tamilian words you can say Tapi and Thatha. Thatha is her grandfather and Tapi is her grandmother. And one afternoon, her grandmother Tapi takes her to her aunt Rukumadi's house. Why? To let her meet her cousins Lalli, Ravi, and Meena. So these four children, Mridu, Lalli, Ravi, and Meena, they are the four main characters of this story. And let us see what happens when Mridu goes to meet her cousins Lalli, Ravi, and Meena. Let us see here a gift of chappals. Gift you all are well familiar with a present. Okay. Now see. When the story begins, what do you see here? A smiling Rukumadi. You all know. The grandmother of Mridu took her to Rukumadi's house. A smiling Rukumadi threw open the door. Means now Mridu was at the house of Rukumadi. So you can title it Mridu goes to Rukumadi's house. This is what you can say. You can divide it into several parts. I will try to divide it into 5 parts. First one will be Mridu goes to Rukumadi's house. Then another thing will be a kitten. First you see here Mridu goes to Rukumadi's house. This is the first part. Okay. Why did she go there? To meet her cousins. Number 2 will be what? Number 2 will be there will be a kitten. About it you will study. Very important part of the story. The kitten. Third part will be about a screech noise. What it will be? What will be the third part? You see here the third part. Third part will be about a screech noise. Fourth part will be about a beggar, or the beggar you can say here, or a beggar. And fifth part will be about the gift. Twice it will be gifted. Actually it is the gift of chappal. First the beggar was gifted and then somebody else would be gifted. And finally you will find a loving mother in the form of Rukumadi. We shall see that later. So first part, as I have told you, is Mridu goes to Rukumadi's house. And when she went there, first you see Rukumadi. अभी मृदु कहाँ गई? रुकुमड़ी के घर. So she welcomed them. Smiling Rukumadi means she welcomed them. Ravi and Meena, I have already told you. Ravi, Meena and Lalli are cousins of. Who are Ravi and Meena? They are cousins of Mridu. अभी मृदु गई थी अपनी तापी के साथ. Where? To Rukumadi's house. The story belongs to which place? Chennai, Madras. Ravi and Meena, when they saw Mridu, they rushed out, and Ravi, see this character, Ravi, a very talkative boy, you can say,
pulled Mridu into the house. He was very happy to receive Mridu and he pulled her inside the house. Wait, let me take off my slippers. See here the phrase take off. What is take off? It is a phrasal verb. What did he say? Let me take off my slippers. Protested Mridu. रवि क्या कोशिश कर रहा था? मृदु को इनसाइड पुल करने का, रेदर यू कैन से ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था. मृदु अपोज करती है, प्रोटेस्ट करती है. प्रोटेस्ट मीन्स टू अपोज. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टेंसेज. सो फर्स्ट यू सी मृदु प्रोटेस्टेड, सही सेंटेंस यही है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. मृदु ने प्रोटेस्ट किया, अपोज किया, यहाँ डिड लगा है. वंस अगेन यू विल फाइंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो रिमेंबर मृदु इज अ यंग गर्ल. She was living with her grandmother Tapi and grandfather Thatha in Chennai. And along with her Tapi, she goes to Rukkumadi's house. Rukkumadi was her aunt. Who was Rukkumadi? Rukkumadi was Mridu's aunt. She was Mridu's aunt. तो अपनी आंटी के घर जाती है और वहाँ गई. सबसे पहले उसे मिले कौन? रवि एंड मीना. शी सेट देम आउट नीटली. और यहाँ टेक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने बताया है. वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब आए तो वो दो वर्डों का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज फ्रेजल वर्ब. एंड दिस ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स गिव द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट. ओके, सो सेट देम आउट नीटली. शी मीन्स यहाँ कौन है? हु इज शी हियर? मृदु. सेट देम आउट. व्हाट डज देम स्टैंड फॉर हियर? आई होप यू हैव गॉट इट. इट इज slippers. Out. Where did she put them? Out. Neatly near a pair of large black ones. What is this large black ones? ये ones word किसके लिए आया बेटा? You have to remember it is again for slippers. यानी ये भी एक प्रकार का प्रोनाउन है, क्योंकि स्लीपर्स नाउन होता है. ये नेमिंग वर्ड हो गया और ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन. दोज वर ग्रे. अब ये दोज किसके लिए आया? वही स्लीपर्स के लिए, फिर से प्रोनाउन. और अगर हम कह देंगे दोज स्लीपर्स तो ये दोज एडजेक्टिव हो जाएगा. वी विल डिस्कस दैट लेटर. दोज वर ग्रे. वो स्लीपर्स जिनके बगल में उसने अपने स्लीपर उतारे वो ग्रे थे, एक्चुअली विथ डस्ट. डस्ट की वजह से ग्रे कलर दिख रहा था. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो. क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो वॉज देयर ऑन द स्लीपर, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. ठीक है. What does it mean? It means the slippers were very old. Okay. Now see. Big toes were long and scrawny. Scrawny means thin. What does the word scrawny means? Thin. जो two big toes थे वो कैसे थे? Long and scrawny. जो big toes long and scrawny थे, it shows the man, the owner of those slippers, that pair of slippers was what? A thin man. Okay, now see. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were. Mridu, the girl from Chennai, she did not have much time. What did she not have? Time. For what? To wonder about whose slippers they were. She did not worry about whose slippers they were. चिंता नहीं करती किसके स्लीपर्स हैं. टाइम भी नहीं है. और टाइम क्यों नहीं है उसके मन में सवाल भी अगर आया होगा तो बिकॉज ये रीजन दे रहा है. वाई डिड सी नॉट हैव मच टाइम? बिकॉज रवि ड्रैग्ड. अभी मैंने आपको पुल्ड बताया था ना. अब पुल्ड से थोड़ा सा बड़ा वर्ड है ड्रैग्ड. ड्रैग्ड मतलब किसी को दबा के खींचना, घसीटना वर्ड है. पुल के लिए खींचना और ड्रैग के लिए घसीटना. सो हियर यू सी रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. दैट इज वाई शी डिड not worry about the slippers. Okay, she could not ask about the slippers. And where did he take her? Into the backyard. Where? Behind a thick bitter berry bush. झाड़ियों के पीछे ले जाता है. Something interesting was there. So I have told you first what? Mridu goes to Rukkumadi's house. That is the first part. Now second part is going to begin. What was there in the backyard behind the bitterberry bush? ये जो थिक का मतलब यहाँ पे क्या है? डेंस bitterberry bush. घना, मोटा नहीं कह सकते. ओके,
Inside a torn football lined with sacking and filled with sand, there was a torn football. And what was there in that football? क्या था वहां पे? ले, लाई, ले, लेन, और एक होता है ले, लेड, लेड. ले अ वेरी स्मॉल किटन, हम कह सकते हैं लेड पढ़ा हुआ था. व्हाट वाज दैट? अ वेरी स्मॉल किटन. दैट इज द टाइटल ऑफ द सेकंड पार्ट. हमने जैसा डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट हमने बताया मृदु रुक्कुमणि के घर जाती है, मृदु गोज टू रुक्कुमणिज हाउस, एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट दिस किटन. किटन मीन्स द यंग वन ऑफ अ कैट लैपिंग अप, okay, lapping up milk from a coconut half shell. He was drinking milk, lapping up, drinking milk from a coconut half shell. Who was drinking that milk? The kitten. Okay, have you got it? I hope you are getting it. Okay, now see, we found him outside the gate this morning. फिर से देखिए थोड़ा सा, वी कौन हो सकते हैं? ये सारे जो उसके कजन्स थे. एक से अधिक आएगा तभी वी प्रोनाउन आएगा. अकेले के लिए बोलने वाला आई यूज करेगा. सो वी हियर स्टैंड्स फॉर, इट माइट बी रवि स्पीकिंग. देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. हु सेड? said Meena. Okay, so it was Meena. What did she say? We found him. Him कौन है? The kitten. ये kitten हो गया. Where? Outside the gate this morning. Where did Ravi and Meena? अब did लगा दिया तो found नहीं बोल सकते, find. Where did they find the kitten? They found it outside the gate of their house. When? That morning only. Morning कौन सी? This morning. तो ये this adjective हो गया. He was moving and moving. Who is he? अब क्लियर हो गया ना? He is the kitten. Poor thing, helpless creature. Okay? Said Meena. अब देखिए आप यहीं पर बच्चे कैसे होते हैं? Innocent, kind, loving, sympathetic, sincere in their feelings. ये चीज़ें आपको पता चलेंगी. Here you can see behind the bitter berry bush. ये हो गई टॉन फुटबॉल एंड द किटन लैपिंग अप मिल्क. ये हो गया लैपिंग अप मिल्क. ध्यान दीजिए लैपिंग अप मिल्क क्या होता है? रवि, मृदु एंड मीना आर हियर. ओके, नेक्स्ट यू सी, मीना ने बोला, मीना सेट, ओके, इट इज अ सीक्रेट. इट इज अ सीक्रेट. व्हाट वाज अ सीक्रेट? व्हाट वाज अ सीक्रेट? द किटन वाज अ सीक्रेट. किससे सीक्रेट रखा गया था इसको? अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट. अब ये मीना और आगे बता रही है कि उसकी माँ क्या बोलती है? पाती है, ये मीना की पाती की बात है. विल लीव फॉर आवर, उनके कोई मामा है पद्दू मामा. सी विल गो देयर मीन्स सी विल लीव देम, ये इनका घर छोड़ के चली जाएगी. कब? इफ सी नोज. इफ सी नोज ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी इफ लगा हो. इफ सी नोज वी हैव अ कैट भी मीन्स ये इनके घर में रवि और मीना के. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं पाती की मीनिंग दी हुई है. पाती ग्रैंड मदर इन तमिल. अब बच्चे देखिए बड़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. टेलिंग अस ये मीन्स प्रीचिंग अस, नसीहत देते हैं, उपदेश देते हैं, है ना, हमें बताते हैं क्या? कि बी काइंड टू एनिमल्स. और जब ज़रूरत पड़ती है, बट वेन वी शो काइंडनेस, वेन वी आर काइंड, दे स्क्रीम इज दे बिकम हैंग्री, चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर. क्या बोलते हैं जब हम काइंडनेस दिखाने लगते हैं एनिमल्स के प्रति? तो दीज एल्डर्स आस्क अस नॉट टू ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर इनसाइड द हाउस. ये किसने बोला? रवि ने बोला कि पीपल preach something and what? Do something else. The difference between words and deeds of elders.
जो एल्डर्स हैं उनके वर्ड्स यानी शब्दों में, उपदेशों में, और डीड्स माने कर्मों में क्या डिफरेंस है वो बता रहा है। कि बोलते क्या, बी काइंड टू एनिमल्स, जब हम काइंड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर। ओके, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो किचन के बारे में जब हम बात करते हैं, अब यहाँ देखो सबसे पहले, हु इन्फॉर्म्ड मी दैट दे हैव फाउंड अ किचन। यस, विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? My question to you is, who informed Mridu about the kitten? Who was it about the kitten? MCQ दें. Is it the grandmother? Is it Rukumari? Is it Meena? Or it is Ravi? So you have seen who was the speaker here, just before it was Meena. So Meena informed Mridu that, देखो अब यहाँ who से आंसर आया ना, who की जगह आपने मीना लिख दिया, आंसर कंप्लीट। मीना informed Mridu about what? About the kitten. Okay, आगे बढ़ते हैं। Where did they find it? They found it outside their house in the morning. समय अगर पूछे तो that morning only. And then she tells that they had kept it a secret. Why? Because the grandmother would leave their house if she knew about it. अब यहाँ आप देखते हैं रवि कैसा था। रवि was upset. Ravi was upset. Why? Why was Ravi upset? He was upset with the elders because they always taught them to be kind towards animals. But he was angry. Why? Because when children like him became kind towards animals, what? The elders were becoming angry. इसलिए वो गुस्सा हो जाता है कि जब उनकी बातों पे हम अमल कर रहे हैं तो एल्डर्स गुस्सा क्यों होते हैं। ओके, when he was trying to be kind to that kitten, the elders were screaming at them. And what? They called that kitten a dirty creature. ये जो उसने बोला है ना, ये कि डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इसका मतलब किसी ने कहा होगा कि डर्टी क्रिएचर है कौन, वो किटन, इसको अंदर मत लाओ, जबकि उसे अच्छा लग रहा था वो बिल्ली का बच्चा किटन। ओके, देन नाउ ही टेल्स अस अबाउट द डिफिकल्टी इन गेटिंग मिल्क फॉर द किटन। बताता है कितनी डिफिकल्टी से लाता है। सी हियर, पाती सामी, सी, डू यू नो हाउ हार्ड? हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, हाउ हार्ड मीन्स वेरी डिफिकल्ट इट इज। व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट? टू गेट अ लिटिल मिल्क। कहाँ से? फ्रॉम द किचन। किसके लिए? फॉर द किटन। बता रहा है कैसा हुआ। पाती सामी, पाती मीन्स वही ग्रैंड मदर, उसी ने देख लिया। सामी, टेंस देखिए फिर से, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, सी, सा और सीन, सेकंड फॉर्म लगी माने डिड हिडन है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। व्हाट डिड पाती सी फाउंड रवि विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क वेयर इन हिज हैंड। और क्या बोला इसने? आई टोल्ड मीन्स रवि ने बोला, हर मीन्स पाती को, आई एम वेरी हंग्री। अपने लिए बोला कि मैं भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट मीन्स मिल्क। बट द वे शी लुक्ड एट मी, इसका मतलब द ग्रैंड मदर बिकेम सस्पिशियस, डाउटफुल। बोला आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मतलब मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ मिल्क, इसे खुद ही पीना पड़ा जबकि ये किटन के लिए लाया था। क्यों? टू थ्रो हर ऑफ, ये थ्रो ऑफ मिल के फ्रेजल वर्ब बना रहा है। द सेंट मीन्स टू थ्रो ऑफ द सेंट, देखिए मिसलीड करना चाह रहा है, उसके डाउट को हटाना चाह रहा है, उसके सस्पिशन को दूर करना चाह रहा है कि मिल्क कहीं और नहीं ले जा रहा है, मिल्क वो अपने लिए यूज करेगा। यहाँ देखिए थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब क्या है? मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। ये है कि जो आपके मन में डाउट है वो कैसे हटे। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, ये टम्बलर क्या? कंटेनर जिसमें मिल्क था। बोली वापस लाओ, मैं धो देती हूँ। और इसने क्या बोला? पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। बच्चा होशियार है। क्या बोला? दादी आप क्यों धोएंगी, मैं खुद ही धो दूंगा। आई टोल्ड हर, फिर से पास्ट टेंस, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, पास्ट इंडिफिनिट। और क्या बोल रहा है?
I had to run and pour the milk into this coconut shell, कि कैसे वो उसके लिए मिल्क हासिल करता है, कोकोनट सेल में डालता है, एंड देन रन बैक, फास्ट वापस जाता है, एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशस. सस्पिशस तो हो चुकी थी. सस्पिशस की मीनिंग डाउटफुल. और कैसे मिल्क मिलता है वो इसने बता दिया यहाँ पे. ओके, इज इट क्लियर? बता रहा है कि ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क टू मेक his grandmother believe that it was really he who wanted to drink the milk. Okay, then what else did he share? See, think of, now we have to think of some other way to feed. food का verb होता है feed, खिलाना. किसको? महेंद्रन को खिलाने के लिए. अभी महेंद्रन नया नाम आ गया. Who is this महेंद्रन? अब देखो, मृदु was impressed here. What? महेंद्रन? क्वेश्चन मार्क. कौन है ये? दिस लिटिल किट नेम इज महेंद्र. क्वेश्चन पूछा उसने, क्वेश्चन मार्क लगाया. असर्टिव में सेंटेंस है, सेंटेंस असर्टिव में है, लेकिन ये सरप्राइज बता कैसे हो गई वो कि महेंद्र, अच्छा इसका नाम है क्या? ये तो रियल नेम है, इंसानों जैसा नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये तो बिल्ली का नाम लगता ही नहीं है. अब देखो आगे. एक्चुअली हिज फुल नेम इज, see the name, Mahendra Verma Pallav Punai. What was his full name? Mahendra Verma Pallav Punai. Now Ravi started telling about the kitten. किसको? To मृदु. पहली चीज क्या बताया कि its name was Mahendran and full name was Mahendra Verma Pallav Punai. Mridu was what? Amazed. She was very much impressed. Okay. She said it sounded like it was a real name. It did not look to her or seem to her like the name of a cat. Okay. Now, what did he inform her? See, he informed her. See, MP Pune for short. इफ यू लाइक. शार्ट में क्या नाम बताया? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई था, शार्ट में एमपी पुनाई. अब उसके बारे में बताना शुरू करता है ना. दैट इट वाज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. पहली चीज, अ फाइन ब्रीड, स्पीसीज ऑफ कैट, बहुत ही अच्छी प्रजाति का है. कैसे पता कर सकते हो कि फाइन ब्रीड ऑफ कैट है? बाय जस्ट लुकिंग एट इट्स फर. फर, स्मॉल हेयर ऑन द स्किन ऑफ अ किटन, अ कैट. और बाकी एनिमल्स के भी जो बाल होते हैं, रोए होते हैं छोटे छोटे, दे आर नोन एज फर. तो कैसे पता चला कि ये फाइन ब्रीड ऑफ कैट है? बोला जस्ट लुक एट इट्स फर एंड यू विल फाइंड दैट इट इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. कैसा दिख रहा है? लाइक अ लायंस मेन. ओके. और मृदु क्या करती है? हंस देती है. देखना. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज. अब पल्लव किंग्स के एम्ब्लेम की बात करता है, उनका जो चिन्ह हुआ करता था. डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. होपफुली मृदु की तरफ देखता है, मृदु गिगल कर देती. गिगल मीन्स लाफ्ड लाउडली. ओके. थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. अब थोड़ा हिस्ट्री का भी नॉलेज अपना वो झाड़ देता है. बोलता है परहैप्स यू डिड नॉट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कैट. बोलते और क्वेश्चन कर, हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? नाउ रवि वांटेड टू प्रूव हिज नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री. आगे देखो कैसे प्रूव करता है. वो बताता है कि during his school trip to Mahabalipuram, he had seen a statue of a lion. Okay, and he further added that he believes that it was the ancestor of that kitten. क्या बता रहा है? See, well, he said mysteriously in a mysterious way. Well, when our class went to Mahabalipuram, मतलब स्कूल की ट्रिप है, क्लास की ट्रिप हुई थी कहाँ? महाबलीपुरम के लिए. There he saw a statue again past in infinite tense. आप हिज थाथाज एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब उसके बब्बा के ग्रैंडफादर के जितना बोल सका बोला. कि देयर ही फाउंड दैट व्हाट महाबलीपुरम ऋषि कैट. यहाँ आगे आएगा. ओके. महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम
that very same ancient cat. कौन सा ancient cat? The cat in the emblem, in that statue, in the emblem of the Pallav kings. क्या बोल रहा है आगे देखिए. A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. क्या बोलता है कि एमपी पुनाई लायन का रिलेटिव है, उसका डिसेंडेंट है, उसका डिसेंडेंट है. मतलब ये जो लायन था महाबलीपुरम का स्टेच्यू में, ये वो कौन है? इस महेंद्रन का फोरफादर है. ओके ओके. सो एंड ही फर्मली बिलीव्ड इन इट एंड ही प्राउडली अनाउंस्ड दैट दिस स्मॉल किटन, दिस महेंद्रन, is the descendant of Mahabalipuram Rishi cat. Okay, see here. Ravi went on, continued. See, the Pallav's lion. Lion counts a Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on, continued, walking around the bitterberry bush, weaving a twig up and down. एक twig लेकर के, टहनी लेकर के up down move कर रहा है, wave कर रहा है. His eyes sparkling. एंड देन दिस कैट, ये कौन? दिस कैट कौन है? महेंद्रन. दिस एडजेक्टिव हो गया, कैट नाउन है. अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. किसका डिसेंडेंट है ये? महाबलीपुरम के ऋषि कैट का. ओके. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट. अभी छोड़ नहीं रहा, आगे भी बता रहा है. ही रिमाइंडेड मृदु दैट कैट्स वर वर्शिप्ड वेयर? इन एंशिएंट इजिप्ट. और इतना ही नहीं, अभी आगे देखो कुछ और बताएगा वो. सी, कि एक तो महाबलीपुरम के ऋषि कैट से जोड़ दिया इसका महेंद्र एमपी पुनाई का कनेक्शन, और दूसरा क्या बोल रहा है? हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स. इसकी मतलब बातें सुन करके मीना और मृदु भी थोड़ा सा एम्यूज्ड हो रहे थे. और What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड कि कैट की वर्शिप से क्या मतलब है इजिप्ट में. सो हु? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. नो गॉड इज बास्टेड. क्या बोल रहा है? कि इट वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ इजिप्शियन कैट गॉड इज बास्टेड. तो एक तो महाबलीपुरम की ऋषि कैट का ये डिसेंडेंट था, और दूसरा इजिप्ट की जो कैट गॉड इज बास्टेड थी उनका भी. Yeah, that is it. So, well, अब कैसे हुआ होगा ऐसे? कैसे इजिप्ट की कैट गॉडेस कैसे यहाँ पहुँच गई महाबलीपुरम में? तो देखो एक्सप्लेनेशन उसका, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है रवि के पास. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस क्या होता है? वो बाजा स्टोव. स्टोव देखिए यहाँ मीनिंग दिया है. समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड. इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव शिप में कभी एक बार उस जो वहाँ की कैट गॉडेस बास्टेड है उनका कोई डिसेंडेंट क्या हुआ? स्टो अवे किसी शिप में, पल्लव शिप में छिप करके कहाँ आ गया? महाबलीपुरम है. एंड दैट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और उसका डिसेंडेंट कौन है? एमपी पुनाई. रवि फ्लरिश्ड वेव्ड हिज ट्विग एट महेंद्र. एमपी पुनाई हियर who peak. He shrieked, very pleased with himself. तो यहाँ आप देखो थोड़ा सा आगे की लाइन में आप देखेंगे, महेंद्रन looked up alarmed. Why he looked alarmed? We shall see. I have told you the creech sound, the creech noise, the beggar and the gift. These three we shall see in the next video. I hope up to here you have got two things are there. Mridu goes to her आंट रुकुमड़ीज हाउस. सी मेट देयर, किससे मिलती है? रवि एंड मीना से. सी मेट देयर हुम? रवि एंड मीना. एंड देन रवि एंड मीना, स्पेशली रवि हियर, टूक हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड द बिटरबेरी बुश. एंड देयर मीना, किसने? ध्यान रखिएगा ना, मीना इन्फॉर्म्ड किसको? मृदु को अबाउट द किटन. एंड देन रवि with his sound knowledge of the history, you can say, told her all about MP Punai. Who was this MP Punai? Do you remember? The kitten was named MP Punai. Okay, what happened next? We shall see in the next video. Thank you and have a nice day.